I am your host, Neem bin Mohammad Rafi, and here is my YouTube channel, Zamir Universal. The infighting between the ministers who are extremists and who are anti life, who are the war criminals, and the one who have been going with their shoes on into the most sacred mosque, Al Aqsa, and taking more than 2,000 people with him and trying to change the status quo of the great mosque and the first Qibla of the Muslim Ummah. Now, when you have infighting like this, and there is one stubborn man amongst it, on one side is the real, able ministers in the cabinet, and you can see what kind of democracy that would be, where there is one single man trying to protect his own crimes because he wants to emerge and come out as a hero, and or because otherwise he goes to jail and probably he will be hanged by his neck till he breathes his last. And the Van Giver, which is another beast, which is not a human being, he is probably a pig converted into a human shape, and he is the one who you can see him fighting with the defense minister and telling him that you are a coward. You said that you will turn Lebanon into a stone age. Now what is happening up in north? Well, he has to face reality. All the blood of these innocent kids, newborns, the children, women and civilians and all those people, you took their clothes off and put them in panties and gang raped them, and you can see that for yourself. You see your own women and see your own wives, sisters, daughters, and see them in the graveyard burying their loved ones, cursing you. And now, on one side, either you have the civil war in your country and have the army take over, and that's perhaps is the only solution. You can see that the chief of the United States Air Force is here. He's telling you to stop it. Your own two intelligence agencies, both the Mossad and the other one, is they're telling you that the Israel will be completely disappear and it will vanish from the planet Earth and will no more on the map of the globe if you keep on doing this, because you face the reality and see the whole of 180 kilometers north of Israel burning. Now, when you have the ground invasion and have the Houthis, you have the Lebanese, you have the Hezbollah, you have the Hamas, and you have the Iraqis, and you have Iranis when they're coming up, and or the Taliban, and even Turks. And you can see that when all these people, the Muslim countries, army comes and invades you, you imagine that what's going to happen to you. They are going to eat you raw. So listen to your people who say that stop the war, stop killing, and have ceasefire, because that's the only way if you would survive, and then revert back to the 1967 borders and gracefully embrace and declare them as the majority population in Palestine and be a part of that government. And that's where you can have one government. Abolish apartheid, abolish your court, have the a consensus amongst these people, and have the proportionate representation in your assembly, and that will bring a peace for everyone, and merge into the Middle East culture, and no more your Western civilization of your womanizer, alcohol, pornography, homosexuality, sodomy, and all sorts of nonsense. Stop it. पर लग जाए, यानी हम ही बेशक मार दें, नाम हम ईरान का लगा दें। अब वो प्लान तो बीच में इनका रहा है, उनको समझ नहीं आ पा रही। मसला सारा ये है कि इसराइल से अब ये हैंडल नहीं हो पा रही सिचुएशन, और वजीर एक दूसरे को कह रहे हो तू बुजदिल है, वो कह रहा है कि तू घटिया इंसान है। यानी आप ये सोचे हैं कि जो इंटरनली लड़ाई आई थी कि आर्मी चीफ को सामने बिठा कर, या वजीर दिफा बैठा हुआ था, मीटिंग हुई इनकी जब, तो वहां पर वजीरों ने आर्मी चीफ को कहा, जब उसने कहा कि आप लोग लिबनान की जो जंग छेड़े हैं, आप ऐसी हरकत ना करें, ये पूरा सब कुछ तबाह हो जाएगा, और आप गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे। तो वहां पर वजीरों ने उठकर आर्मी चीफ को कहा कि तुम, यही अल्फाज इसराइली मीडिया ने कोट किए,
उन्होंने कहा कि वो आगे से कह रहा है कि तुम अपनी औकात में रहो। वजीर आर्मी चीफ को कहता है तुम अपनी औकात में रहो, लेक्चर ना दो हमें यहाँ पर बैठकर। जब 7 अक्टूबर का हमला आ रहा था तो तुम बुजदिलों की तरह घर में सो रहे थे बैठ के, तब बचाना था ना जाकर। तुम्हें बजट किसके लिए दिया जाता है? आप अंदाजा कर सकते हैं किसी और मुल्क के अंदर कोई वजीर उठकर आर्मी चीफ को कहे। अब सीन ये हुआ कि जब आर्मी चीफ को कहा तो उसके बाद फिर वजीर दिफा उठा और उसने कहा कि मैं आर्मी चीफ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपने अल्फाज यहाँ पर वापस लो। कहता मैं नहीं लूंगा। यानी ये लड़ाइयाँ इस वक्त उनके यहाँ चल रही है। मसला ज़रा क्या है, ये सारे आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि इनको वो जो कामयाबी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। अब न्यूक्लियर जंग आप बताएं कि सारी सूरत हाल में यमन ने किया क्या है? उनको रूस ने मिसाइल दे दी। रूस के मिसाइल देने के बाद आप जरा देखिए शिप्स का हाल क्या हुआ है। ये शिप ऐसे तबाह हुए हैं जैसे आप ये सोचे कि जो इसके ऊपर सवार थे सेलर, उनके लिए तो क़यामत बर्पा हो गई। वजीर आपस में लड़ रहे हैं, आर्मी चीफ आपस में लड़ रहे हैं यानी सिक्योरिटी के साथ। उधर शिन बैत की एजेंसी जो है उसका डायरेक्टर लेटर लिख रहा है, वो सारे एक दूसरे को कह रहे हैं और नेतन्याहू को कोस रहा है। नेतन्याहू जब मिलता है कैदियों के घर वालों से तो उनको ये कहता है कि जी मैं तो कसूरवार नहीं हूँ, ये तो आर्मी चीफ है, उसी ने काम किया। और उसके बाद आप सोचिए मुसाद का डायरेक्टर जब वो मिलता है कैदियों के घर वालों से तो उसने कहा जी नेतन्याहू जिम्मेदार है। और आप सोचें इनकी आपस की इतनी लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई अब इतने चौक चौराहों में होना शुरू हो गई है और इसराइल की तारीख में हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी। जब एक गवर्नमेंट के वजीर आपस में एक दूसरे के साथ एक्स यानी ट्विटर के ऊपर लड़ाइयां कर रहे हो तो आप सोच लें कि बैक एंड पर कितनी तबाहकुन सूरत हाल होगी और क्या मामला होगा। अब नेतन्याहू के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकली और वो कह रही है कि तुम असल में ये सारा काम कर रहे हो। और आप ये सोचे कि आपस की इनकी डिवीजन कितनी ज्यादा होगी। अब मसला सारा कहां पर आकर रुका हुआ है? मसला जरा देखिए, ईरान की वजह से इन्होंने अपने मुल्क में हाई अलर्ट कर दिया और वहां पर लोगों को कहा आपने राशन रखना है। अब 1 अगस्त से लेकर आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं वो तबाही कितनी ज्यादा हो गई है कि महंगाई का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर चल। 1 अगस्त से लेकर 24 अगस्त हो गई है, 24 अगस्त लोगों ने राशन संभाल कर रखा हुआ और डे बाय डे वो खरीद रहे। वहां पर स्कूल खुलने का टाइम आ गया, किसी को नहीं पता, फ्लाइट्स कैंसिल हैं अभी तक, इन्वेस्टर भाग चुका हुआ है, सारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, करेंसीज का बहरान है, फौज लड़ने को तैयार नहीं है और हमले उन पर डबल से ट्रिपल होना शुरू हो गए। डेली बेसिस पर हमले हो रहे हैं और इतने हमले हो रहे हैं कि अब जो सिविलियन है उनके घरों को आप देख सकते हैं मनाजिर, आग लगी हुई है। तो आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या आपको अंदाजा है कि इस लेवल पर जाकर कोई आपस के अंदर सुलह कुछ होगी? वो पूछ रहे हैं कि जंग का जिसे कहते हैं एंड क्या है, फ्यूचर क्या है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे नहीं हमने लड़ना है। अच्छा आपने लड़ाई करनी है, आपने ईरान के अंदर उनका बंदा भी मार दिया, तो व्हाट नेक्स्ट? अब वो इंतजार कर रहे हैं ईरान के हमले का। ईरान हमला नहीं कर पा रहा अभी तक और वो किसी भी टाइम कर सकता है। उधर यमन उन्होंने हमले तेज करने शुरू कर दिए, लेबनान उन्होंने ड्रोन मारने शुरू कर दिए। अब ये जो कह रहा है वजीर के जी आप लेबनान पर हमला करें, देखिए वो इतने बेवकूफ, उनको समझ नहीं आ पा रही कि लेबनान पर हमला करेंगे उनके ड्रोन्स यहाँ पर मिस हो रहे हैं, आयरन डोम काम नहीं कर पा रहा, जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है या डेविड स्लिंग है या एरो है वो भी काम नहीं कर पा रहे। तो करना क्या है? वो ये समझ रहे थे कि ईरान हमला करेगा, उसके बाद हम अमेरिका को, फ्रांस को, बरतानिया को और खुद हम सारे जाकर ईरान पर हमला करेंगे, ये जंग वहां चली जाएगी और फिर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ये वहां पर ईरान से लड़ाई करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे, फिर हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करेंगे, हम ईरान की ऑयल फैसिलिटीज तबाह करेंगे। उतनी देर में ईरान 2-4 हम पर मिसाइल दागेगा, वो मिसाइल हम कह देंगे थी मुसलमानों की मुकद्दस जगह के ऊपर जाकर गिर गया है तो लिहाजा वो तबाही हो गई है तो ईरान जिम्मेदार है। वो सारे के सारे जो प्लान थे वो तो इस वक्त सर्द खाने में चले गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही कि भाई हमारा मुस्तकबिल क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं, हमने क्या करना है। वहां पर लोगों को बताया जा रहा है, साइकियाट्रिस्ट ये बता रहे हैं कि लाखों के हिसाब से जो इजरायली हैं उनको इस वक्त बैड मेमोरीज की वजह से पूरी तरह ट्रॉमा का शिकार है। वो अभी जंग मुसल्लत नहीं हुई, रातों को वो खौफ से जी रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो में आप बताइए कि जंग का और फ्यूचर इन सब का क्या मुस्तकबिल है? कोई समझ नहीं आ पा रही है उनको कि बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान है। जो कंपनीज हैं वो शट डाउन करके इसराइल छोड़कर जा रही हैं, आम इसराइली भी जा रहे हैं
और सबसे बढ़कर जो मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है, अमेरिका के इलेक्शन है, वो इनको बार बार आकर कह रहे हैं, जैसे जनरल ब्राउन अब आया है, उसने आकर ये कहा है कि यार आप ये जंग ना करें, आप इस जंग को मैनेज करें, यमन आपको तबाह करने के लिए जा रहा है, मैं आपको रोकने के लिए आया हूं, आप इस सारी सूरत हाल में दबाव डाल रहे हैं कि हम ईरान पर हमला करें, फलाना करें, तो ये कैसे आप जंग लड़ेंगे? तो आप बताएं कि सारे स्नैरियो के अंदर इजराइल की पोजीशन, चौक चौराहों में ये गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, बुरा भला कह रहे हैं। देखिए, जब जंग ट्विटर पर पहुंच गई है, जब जंग एक्स के ऊपर हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर वजीर एक दूसरे को बुरा भला कह रहे, वो कह रहे तू बुजदिल है, वो कह रहे हैं कि तू गद्दार है, तेरी वजह से मुल्क तकसीम हुआ पड़ा है, नेतन्याहू घटिया आर्मी चीफ फलाना है। यानी आप इस तमाशे को कैसे देखेंगे? पूरा वर्ल्ड इंतजार कर रहा है और वो देख रहा है इनकी यानी इस सूरत हाल को देख रहा है कि यार ये चल क्या रहा है। सो इस वक्त इजराइल की जो पोजीशन है या इन सब की बाकियों की जो पोजीशन है, उससे आप अंदाजा अच्छी तरह लगा सकते हैं कि मुल्क किस सतह पर जा रहा है इनका और क्या मामला है। एक ही इनके पास हल था, ईरान हमला करे हम जवाब दें। अब ये खुद हमला करना चाहते हैं, लेकिन कोई पूरा रीजन इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने ईरान को कहा था आपने हमला नहीं करना। ऐसा लग रहा है ईरान फिलहाल थोड़ा बैक साइड पर आया है। तो अब इसराइल, אבל אנחנו הולכים למסלול התנגשות עם הממשל האמריקאי. ארצות הברית זה לא מקשה אחת, זה לא מקשה אחת. יש את הסנאט, יש את הקונגרס, יש את הכוח היהודי שהוא עצום, יותר חזק משהיה אי פעם. יש דעת קהל, יש לנו כוחות כבירים בדעת הקהל שמתנגדים למדיניות הזאת, גדולי הפרשנים. אמריקה לא תכפה עלינו דבר, אם לא... Israel is attacking the UK. This is not a conspiracy theory. It's a fact. To say that we will not be slave to Allah and Allah's representative. Instigators of the riots have received money from Israel. Even the Times of Israel have exposed the financing of it. But why attack the UK? 12 days ago, the new UK government dropped its objection to the ICC's arrest warrant for the Israeli PM. And last Friday, the Daily Mail broke the story that arms exports to Israel have been suspended, hence the increase in violence over the weekend. We've had people shipped in who have instigated a crowd scene here that, it's got to the edge. The EDL was originally registered as a limited company in 2010 by former Israeli soldier Roberta Moore. And then there's Paul Sinato, also known as Paul Ray, was also a key figure in the early days of the EDL. In a blog interview from 2007, he claimed to have fled to Israel for his safety and has alleged links to Mossad. Look how fellow co-founder Stephen Yaxley Lennon this very week tried to falsely link Hamas, a prescribed terror organization, to the riots. Why are people angry? I'll tell you why they're angry. Because Hamas were allowed to overtake London, overtake our capital city. And who helps fund him? People like US tech billionaire Robert Shillman, who's also a major donor to the Friends of the Israel Defense Forces. Wake up. A foreign power is spreading disinformation to sow division and increase anti-Muslim sentiment. And that takes attention off their genocide in Gaza. Take back control by sharing the truth. नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अल-कस्साम ब्रिगेड रिपोर्ट कर रहा है, our fighters managed to detonate a minefield that had been prepared in advance in a number of enemy vehicles and engineering equipment in the area of military sites east of the city of Deir al-Bala. Our fighters monitored the sole cause of the current situation. हमारा जो सबसे इस वक्त कोर इशू है, हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है, वो इजराइल के ऊपर है. Axis of resistance will be our agenda under all circumstances. इस वक्त जो सारा उम्मीदें लगी हुई हैं, वो ट्रंप से लगी हुई हैं और नेतन्याहू इंतजार कर रहा है कि अगर ट्रंप आता है तो वो फिर उनके मुताबिक जो भी उनका प्लान है, लेकिन इजराइल इस वक्त इंतजार कर रहा है, नेतन्याहू इस वक्त इंतजार कर रहा है ट्रंप का. तो ये हैरड्स रिपोर्ट कर रहा है. तो आप देख रहे हैं कि हैरड्स इस बात को रिपोर्ट कर रहा है. एन इजरायली सीनियर ऑफिशियल सेड ब्राउन इज एक्सपेक्टेड टू मीट विद चीफ ऑफ स्टाफ एंड डिफेंस मिनिस्टर. ही विल आल्सो विजिट जॉर्डन एंड इजिप्ट. अब जॉर्डन और इजिप्ट क्यों जा रहे हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है ना, जॉर्डन और इजिप्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जॉर्डन और इजिप्ट जो हैं, इनके ऊपर मुसलसल मतलब उनको कहा जा रहा है कि आपने भी इजराइल का डिफेंस करना है. और इस वक्त कोई भी इस्लामी मुल्क जो है, कोई भी अरब मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि वो आकर इजराइल को डिफेंड कर सके. अवाम जनरल विल विजिट इजराइल
amid continued coordination and assessment for a possible attack by Iran and Hezbollah. किस हवाले से ये विजिट हो रहा है? ईरान और हिजबुल्लाह के हमले के असेसमेंट के हवाले से। सबसे बड़ा इनको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि ये अंधेरे में है। इनको आइडिया नेम अटैक ऑन इजरायली ट्रूप कैरियर्स। द आर्म्ड विंग ऑफ हमास सेड फाइटर्स स्ट्रक द ट्रूप कैरियर्स इन द सेंट्रल गाजा स्ट्रिप। तो इस तरह अब ये जो दीर अल बाला के इलाके हैं, यहां पर शदीद तरीन बमबारी भी की जा रही है। पूरी गजा पट्टी में बमबारी साथ साथ जारी है। बमबारी का तो सारी बात है, हमास को हल निकाल नहीं सकती है, लेकिन जो जहां जहां से ग्राउंड फोर्सेस दाखिल हो रही हैं वहां पर उनका सामना जो है। जनरल asked the judges to make us urgent decision on arrest warrants against Netanyahu and his defense minister Yoav Gallant and Israeli army chief। ठीक है, अब आपने ये देखा कि वो प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि फिल फॉर जो अरेस्ट वारंट वो जारी किए जाएं। इसमें देखें नाज़रीन के एक मुसलसल प्रेशर जारी किए जाएं। आईसीसी प्रोसिक्यूटर अर्ज जजेस टू इशू अर्जेंट रूलिंग ऑन अरेस्ट वारंट्स फॉर इजरायली ऑफिशियल्स। द प्रोसिक्यूटर कंफर्म्ड दैट कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर इजरायलीज हु कमिट ब्रूटल क्राइम्स इन द पैलेस्टीन। नज़ीर, आलमी अदालत से नेतन्याहू और बाकी इजरायली ऑफिशियल्स के वारंट्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इजरायली ऑफिशियल्स को बहुत कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया है, जबकि गजा में पूरी पट्टी में जगह जगह के ऊपर लड़ाई हो रही है और माइन फील्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस वक्त जो हमास है और बाकी तंजीमें जो इस वक्त लड़ रही हैं वो उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही हैं। CIA के चीफ इस वक्त मिस्र के अंदर मौजूद है, जबकि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ इस वक्त बड़े अहम तरीन दौरे के ऊपर इसराइल पहुंच रहे हैं। ईरानी हमले के हवाले से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। इस वक्त अगर आप समझे तो अमेरिका की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है वो मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी है। तो बहुत सारी ताज़ा तरीन खबर निकालना पड़ेगा, वगरना अमेरिका के लिए आने वाले महीनों में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। जितनी जंगें आगे बढ़ती चली जाएंगी अमेरिका को उतना नुकसान होता चला जाएगा। जैसा कि फॉरेन पॉलिसी ने मार्च में लिखा, ये अगस्त का महीना है, मार्च में फॉरेन पॉलिसी ने लिखा, मार्च 2024, द यूएस मिलिट्री इज रनिंग शॉर्ट ऑन एम्युनिशंस एंड सो इज यूक्रेन। कि मार्च की और इस तरह और भी बहुत सारे मीडिया ने, मैं आपको बताया ना कि इक्का दुक्का खबरें। This Jewish rabbi reveals why Muslims are the actual chosen people and why it is impossible to defeat them. That the last and most difficult galus that Am Yisrael will face will be the confrontation with Yishmael. And this was said in the 1500s, and the Pirkei Rabbi Eliezer was even earlier. And he says Yishmael is the most difficult because they are the only one of our enemies that comes with a spiritual power. For Muslims, of course, this is nothing new. And even if our current state may make us think otherwise, the reality is that our deen, if we follow it correctly, gives us a winner's mindset, thanks to the reliance on our Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. And that rabbi is well aware of that. Many Jews may delude themselves saying that Islam is not a real religion, but the learned ones know for a fact that we worship the Creator of the heavens and the earth with complete devotion and unsullied monotheism, even if the disbelievers hate it. Because Yishmael comes not only with physical brutality, but Yishmael comes with spiritual merits. They are a child of Abraham. They have a koach of prayer. They have a merit of Brit Milah, again, which goes back to Abraham. There is a tznius. And the reason why the galus is so difficult is that we have to counter it with a spiritual power that is greater than their spiritual power. There's no way to stop it. But is it even possible? Can any people counter the spiritual power of a ummah devoted to their Lord, who prays 5 times a day, remembers God, and honors all the prophets he has sent, without making any distinction? Can any people in the world claim that besides Muslims? On top of that, those who fight in the way of Allah subhanahu wa ta'ala believe in the promise of our victory or martyrdom, and both the victors and martyrs are honored after the battle. And this is why so many historical texts over the centuries relate the fierceness of Muslim fighters. There's no way to stop it, meaning there is no logical way of stopping people who are willing to die for their cause. What, they're threatened with death? Bring it on, gesundte hate. That's what I want. But when you have people who don't care if they die, then how are you going to stop them?
And the simple observation is why the most learned rabbis in the past and right now know the true worth of Muslims and recognize that they are not a force you can defeat in conventional ways. There's nothing you can do. So really, the statement of Rav Chaim Vital that Golus Yishmael is impossible to defeat by conventional military means, is even true in a simple political way. There's no way. You do your ishtadlus, but there's no particular way that you can guarantee anything. So the dilemma is we need spiritual ways of defeating them. And a simple observation of the world makes it clear that no nation can outclass Muslims in piety. And the presence of Muslims in the West is the only thing defending traditional values in lands where plots are put in place to destroy them. In short, Muslims should know that, like in the past, we can and will once again have the upper hand. The question we should ask ourselves is, do I want to be part of it by being more pious? Or will I let the honor to the future generations? For if we don't appreciate the blessings of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala can easily give it to a people who will appreciate it more. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर